charisma are taking hold of the day. The world is full of diamonds and gems, and we are lucky enough to have some of them with us to build this event. With this note, I would like to extend my heartiest welcome to our esteemed Principal Sir, Dr. Dharmendra Singh Uba, Ravinderjeet Singh Sir, the Controller of Examination, Dr. Jagjeet Singh Sir, Head of Music Department, respected teachers and all my dear friends. I consider myself fortunate to be able to extend a warm welcome to everyone who is participating in the orientation program. Today is the day for students to learn about their new journey and plan their future. On this campus, you will see a fantastic and innovative method of learning. I can assure you that this college will help you achieve all your future aspirations. Now I would like to invite Manpreet to present token of respect to Sir. A huge round of applause. Good morning everyone. My name is Manpreet. I have written poem for Sir. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਬਾ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਜਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਲਜ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ। ਡਾਕਟਰ रविंदरजीत सिंह कंट्रोलर प्रीखियावां कॉमर्स डिपार्टमेंट के सारे ही मेरे स्टाफ साथी साडे विच विशेष तौर पर शामिल हुई थापर कॉलेज तो असिस्टेंट प्रोफैसर साडी बेटी लविका ते बाकी सारे प्यारे विद्यार्थियों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे लिए ये बड़ी खुशी और माण वाली गल है कि मेरे विद्यार्थी इस तरीके दे नाल प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। कॉलेज स्कूल इस करके बने ने कि केवल असी इथों पढ़ाई नहीं करके जानी, सिलेबस थोड़ी पूरे करने ने कल्ले। वी आर टू डिवेलप आवरसेल्व्स, वी आर टू ग्रूम आवरसेल्व्स होलिस्टिकली। बड़े वाइडर परसपैक्टिव दे विच असीं अपने आप नूं ग्रूम करना। मेरी तुहानूं पहली गुजारिश ये है कि तुसीं सब तो पहला कॉलेज की सारी मर्यादा, कॉलेज की मान नूं जिहड़ा है तुहाडे दिमाग 'च वसना चाहिए। जिहड़े लोग अपनियां संस्थावां नूं प्यार करते हैं वो लोग यकीनन तौर पर अगे बढ़ते हैं। जिहड़े लोग, मैं इस तो जे पहली गल शुरू करा, सब तो पहला घर का प्यार शुरू होंदा। घर के प्यार तो संस्था का प्यार, संस्था के प्यार तो शहर का, स्टेट का, देश प्यार, कायनात के प्यार तक गल पहुँचती है। और मैं बहुत बार ये कहना हुन्ना कि जदों साडी जिहड़ी अप्रोच आ वाइडर हो जाती है तो सानू सारा कुछ ही चंगा लगता है, सानू बुरा लगनों हट जाता है। सानू प्यार मुहब्बत हर चीज़ दे विच दिखाई ना। सानू ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਲਵ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਦ ਫਲਾਵਰਸ, ਦੇ ਲਵ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਦ ਟਰੀਜ਼। ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि कमाल आ, कैसा कमाल है सूरज का। ये वितकरा ही नहीं करता किसी नाल डिस्क्रिमिनेशन करता ही नहीं। इनू कोई बेगाना लगता ही नहीं। कदे सूरज कहता मैं फलाने फलाने धुप दूंगा, दूजिया नहीं दूँ, कदे नहीं कहता। कदे चंद्रमा कहता भी मेरी रोशनी इन्हां ते चार ते फोकस होकर जाऊगी। घर च लाइट तो तुसीं आपदी ला सकते हो,
कि जे बैठोगे सेंटर 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਵੇ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇ। सूरज ये कहता भी नहीं, जे मैं चढ़ूंगा सारा लिए चढ़ूंगा, नहीं चढ़ूंगा कोई गल। यही तारिਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, यही फुल फलां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, यही हवा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, यही मींह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। नेचर ने इन्ना कुछ सानू दिता, सानू सीखना की पेगा भी लर्न हाउ टू बी थैंकफुल। तुसी जेडे लोग पढ़न आ गए, अगेन यू आर ए थिन माइनॉरिटी फ्रॉम द लार्ज जंक ऑफ पीपल जिन्होंने मौका मिलया कॉलेज आए, कॉलेज आके इन्ने खूबसूरत ऑडिटोरियम बैठे, उत्ते AC लगे ने। जदों मैं बराबर उन्हां रैग पिकर्स बच्चों को देखदा जिहड़े कागज इकट्ठे करते गर्मी दे विच बोरियां ते लद के तुरे फिरदे ने, तां कई बारी देख के अखां भरदियां ने कि हे परमात्मा साडे ते तू किन्नियां बख्शिशां कीतियां ने, साडे जवाकां कोले सहूलतां ही सहूलतां ने, ते ये बेचारे सवेरे उठदे सार 5 वजे कई बारी सवेरे ना दिन नहीं चढ़िया हुंदा, वो बच्चे चक के समान चकदे फिरदे हुंदे। सानू थैंकफुल होना सीखना पऊगा, सानू एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपनाउणा पवेगा, सानू अपने दिमागां दे विच ये गल वसाउणी पवेगी कि असीं बहुत भागां वाले हां। Those who get the opportunity to be in the college life, they are really blessed people. ते जदों तुसीं इन्ने blessed हो, it means we need to derive the best benefit from the college. Knowledge जिहड़ी है ये तुहाडा प्राइम फर्ज होना चाहिए कि असीं वध तो वध एक्वायर करनी है, असीं डिसिपलिन दे विच रहना, असीं जिम्मेवारियां नूं पूरा करना, असीं अपनी संस्था दे नाल ऐसी अपनत पैदा करनी है कि साडी होंद ते संस्था दी होंद विच कोई अंतर ना रह जाए। फिर की होएगा, फिर तुहाडी अप्रोच बदलनी शुरू हो जाएगी, फिर तुहानू लगेगा कि यस यार मैं कॉलेज आया वाकई आ फायदा। ऑनलाइन तुहाडे कोले की डिलीवर होना, PDF, Zoom लेक्चर, ऑलमोस्ट वन वे ट्रैफिक, नो आई कॉन्टैक्ट, नो माइंड कॉन्टैक्ट। नहीं तो टीचर तो जो क्लास जाता बच्चे का चेहरा देख के उसकी उदासी का पता लग जाता कि अज उदास क्यों बैठे, ये अज तनाव च क्यों आ, ये पिछले 7 दिन तो क्यों नहीं आ रहा, की हो गया इस। तो टीचर नाल जुड़ जाने हो तुसीं, तुहानू लगदा कि यार यस मेरे टीचर ने क्या। याद करो अपना वो समा, कई बार माँ कोई गल कहती और नहीं मनी जाती, टीचर स्कूल कहता सी कि जी मेरे टीचर ने कहा तो मैं करूँगा। टीचर्स आर द रोल मॉडल्स इन द सोसाइटी, समाज के मार्गदर्शक ने साडे अध्यापक, और तुसीं उन्हां तो गेन करना वध तो वध लगातार निरंतर सीखते रहना, ते जिंदगी सच जाने हमेशा सीखते रहने का नाम है। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जिन्ना चिर जिंदगी चलती रहेगी उन्ना चिर सीखते रहना पड़ेगा। तो जिंदगी के बारे मेरे याद आती है, मेरी बहुत पहला 1991-92 में एक गज़ल लिखी, धुप कदे कदे छां है जिंदगी, तड़फ तेरी दा ना है जिंदगी, नित नवा रूप बदलदी, कदे प्यो कदे मां है जिंदगी। पता ही नहीं लगता की है, किहड़े रूप च किस अवस्था च। एक पल तुसी बड़ी कमाल दी मुद्रा चों खुश हो, अगले पल ही कोई ऐसी घटना घटती है बिल्कुल ग्राउंड ते बंदा आ जाता है, कदे अर्श तो फर्श ते ले जाती है, कदे फर्श तो अर्श ते। भिखारियां नूं राजे बना दिंदी है, राजियां नूं भिखारी बना दिंदी है। ते जदों उहदी मेहर हुंदी है, गुरबाणी चाहुंदा कि पिंगला भी पर्बत ते चढ़ जांदा। जिंदगी सिनर्जी है, तुहानूं पता ही नहीं किन्ना कुछ अंश मिल के असीं जिउंदे आ। एक जगह गुरबाणी च जिक्र आउंदा, बिन बाजे कैसो नर्तकारी, बिन कंठे कैसो गाबनहारी, झील बिन कैसे बाजे रबाब, नाम बिन बिरथे सब काज। बिन बाजे कैसो कि तुसीं जिन्ना अच्छा डांस जानते हो, म्यूजिक ना होवे, बाजा ना होवे, बिन बाजे कैसो नर्तकारी, बिन कंठे कैसो गाबनहारी, जे कंठ ही नहीं मिलिया गाउन वाला गा नहीं सकते। झील बिन कैसे बाजे रबाब, रबाब एडा वड्डा इंस्ट्रूमेंट है, झील की छोटी जी पत्ती है जिहदे नाल तारां हिलदियां, रबाब एडा पिया
वो उस पत्ती तो बिना बच इन्नी ज़्यादा एक दूजे नाल असीं जुड़े हुए हैं। साडे अंदर परमात्मा ने बड़ा सैनर्जैटिक सिस्टम बसाया। मैं एक वीडियो देखी, उन्होंने मकैनिकल वीडियो बनाई सी किवें चलदा। तुसीं मतलब कमाल देखो, जे बंदे दा अंदरों सारा खोलिया जाए किन्ना कुछ समान सला बाबा जी ने लाया अंदर, और इन्ना रिदम च चलदा। धड़कन नूं देखियो, धड़कन म्यूजिक च, दिल चों खून दा पंप होना म्यूजिक च। अनम्यूजिकल राग कदों हिल जाता, जो धड़कन तेज 80-85 की बजाय 100 की होंगी है, वो संगीतक लय सारी हिल जाती है, फटाफट बंदा जाता भी डॉक्टर को जाओ। वो ECG सारी वो स्ट्रिंग्स ने, सारिया म्यूजिकल स्ट्रिंग्स ने सारा अंदर, और इन्ना ज़्यादा सिस्टम चा कदे नहीं आम तौर पर प्रॉब्लम हो भी 2-3 पाइपा ने अंदर है ना, भी रोटी भुलेखे नाल दूजी पाइप च लंघ गई, नहीं वापरता, कुदरत ने नेम च। और इन्ना ज़्यादा कमाल का सिस्टम आ, असीं मैडिसन लै लैंदे आ बहुतियां स्थितियां च। डॉक्टर ये कहते हैं, या ये कहिए कि साइंस ये कहती है कि 90-95% हालातों दी जिहड़ियां बीमारियां ने उन्होंने कोई दवाई की लोड़ नहीं। असीं सिर्फ काली करके नॉर्मली वो कहते होंगे कि जे तुहानूं कोल्ड हो गया, मैडिसन ले लोगे 1 हफ्ते च ठीक होऊगा, ना लोगे तो 7 दिनों हो जाओ। आम बुखार आ उतर जाना। तो मतलब देखो तुसीं कितनी सैनर्जी अंदर, ते लाइफ च भी सैनर्जी सी, बाहर भी सैनर्जी सिरजी सी। बंदे नूं बनाया सी कि भाई तू बंदा बन के रहना, मिल गिल के रहना, एक दूजे नाल प्यार नाल रहना, एक दूजे नाल जुड़ के रहना। बंदा किहड़े राहें तुर पिया, गज गज लंबे हंकार लई फिरदा, ये तां घटिया जी, मैं नहीं इहनूं बुलाउंदा। समझ नहीं आई भाई तू इहदे किहड़े इहो जिहा जिहड़ा एक्सरे उतार लिया भी ये घटिया, ये बहुत माड़ा जी, इहनूं ये भी नहीं चंगा, ये भी नहीं चंगा, ये भी नहीं चंगा। घर च भी नहीं प्यार, समाज च भी नहीं प्यार, बाहर भी नहीं प्यार, बनदे वधी नहीं लगदा कोई। कैसी समस्यावां असीं अपने आप लिए पैदा कर ले कि वी हैव स्टॉप्ड लाइकिंग ऑलमोस्ट एवरीबडी, सानूं कोई पसंद ही नहीं आ रहा। बहुत सुखाला अद्धा सैकेंड बिना परखे तो, बिना उस तो जी तो घटिया आदमी है। अरे भाई कमाल है। मेरे मुताबिक मनुख की कोई सिरजना जिहड़ी है बाबा जी ने की, परमात्मा ने की, कि परमात्मा का बनाया हो कोई अंश घटिया हो सकता? इसका मतलब किते ना किते हालात बन गए कि तुहाडे मुताबिक वो नहीं विचर सके। बशीर बदर ने वैसे इस तरीके से एक बड़ा वो इदा सीधा तो नहीं टुकता, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा सी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं कोई बेवफा नहीं होता है। तो उलझ जाता, कई बार नहीं कर पाता। असी हमेशा रिवार्ड रिटर्न से चलते हैं, एक्सपैक्टेशनस इन्नियां ने, राइट्स की दौड़ इन्नी है, मूँह लड़ी जाते हैं। घर च लड़ाइयां किहड़ी गल ने, हौमे दियां। ये जी ये करता नहीं जी, बराबर के अधिकार चाहिए। मैं बहुत बारी अक्सर कहना, मुंडे कुड़ियां सारे बैठे ने, कल नूं जिंदगी के अगले फेज भी जाना। मैनू अज तक ये गणित नहीं समझ आ सकिया रिश्तियां च कि भी बराबर के अधिकार किहनूं कहंदे ने, भी 2 रोटियां मेरी घर वाली बनाऊगी, 2 मैं बनाऊंगा। ये तो सही गणित देखिए फिर तो बराबर के अधिकार की ने, 2-2 फुलके बराबर लाए जान। अदरवाइज की आ, अदरवाइज ये हैगा कि मनुखी रिश्तियां दे विच समस्या जिहड़ी आ, जदों असीं गणित वाड़ लैंदे आ ना, जदों असीं इस तरीके च विचरन लग जांदे आ कि आ कुछ इहदा लकीरां खिच लैंदे आ, वो लकीरां खिच के फिर प्रॉब्लम बढ़दी जांदी आ। वो क्षमा क्या जो किसी एक अंजुमन में जले, वो क्षमा क्या जो किसी एक अंजुमन में जले, कोई ऐसी क्षमा जलाओ जो सबके काम आए। असीं ऐसी सोच सानू पैदा जी है करनी, जब ऐसी सोच पैदा हो गई फिर सानू अटैचमेंट होने लग जाए, तो सुन लगू यार ठीक है कोई गल नहीं। एक गल होर जिहड़ी तुसीं याद रखनी है, जिंदगी च तुहानू बहुत काम हो, वो की आ, द पावर एंड गिफ्ट ऑफ सैक्रीफाइस। That is the most fantastic thing in life. मैनू जिंदगी सब तो खूबसूरत चीज़, बहुत बड़ा गहना, बड़ा कमाल का गुण लगता, वो सैक्रीफाइस वाला लगता है।
ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਲੇਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੰਡਦੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਨਿਭਣਾ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਭਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ? ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I love interference. You need to create that kind of atmosphere. Interventions, interferences, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, you need to respect and love your parents. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ ਕਦੋਂ ਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ M.Com ਕਰਕੇ ਗਈ, ਨੈਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੂਜਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ, ਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਨਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੋ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹੋ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਬ ਹਾਰ ਕੇ ਡੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।